So hello friends, in this lecture I am going to discuss about the designing of push down automata. Designing of PDA. In the previous class I have already discussed about the introduction of PDA. I am repeating this again. Introduction to PDA. We know that finite automata is defined by using the five tuples Q, sigma, delta, Q naught and F, where Q is a set of states, sigma is input alphabets, delta is transition system, Q naught is initial state, and F is a set of final state. So here this is the block diagram of finite automata. This is representing a input tape, finite state control. This is the read only head, and here transition delta is depend only on the Q into sigma, that is Q in case of DFA, Q into sigma 2 की power Q in case of NDFA. So here delta is represented as a Q naught comma A equal to Q1. Already we have discussed this thing. Now in case of PDA, PDA is defined by the 7 tuples M equal to Q sigma T delta Q naught Z naught and F. So among these 7 tuples, 5 tuples meaning are same, which is present in case of finite automata. Here 2 tuple extra is T, that is stack symbol, and Z0 is initial symbol stack. So what is the meaning of stack here? To understand this particular thing, this is the block diagram. In this block diagram, this is the finite state control, so it is similar to your finite automata. In this we are adding one more element, which is known as a push down store, which is also known as a stack. So here transition is delta is depend on the Q into sigma union MT into T tends to Q into T star. Its meaning is transition in PDA is depend on the present state, what is the current symbol, and what is the topmost symbol in the stack. So here the transition is depend on the which operation we are performing on the stack. We know that on the stack we can perform push operation, pop operation, and the no change. Behalf on this we are defining delta as a Q naught comma A comma Z naught. Its meaning is Q naught is a current state,
is current symbol in the tape, Z0 is topmost symbol. If I'm writing this as a Q1 comma AZ0, so here this is representing the push operation. Similarly, suppose I am having here Q1 not comma A. Suppose I am writing in this manner Q1 comma empty, that is representing a pop operation. And if I'm having a like this transition, these are the arbitrary transition I'm taking here. Suppose that is Q1 comma B. It means whatever symbol is present here, same symbol is here, it is representing the no change operation. So these are the three operations, and according these three operation we are defining the transition of PDA. So here what is a Z0? Z0 is initial symbol which is present in the stack, and T is the stack symbol. Among the various symbol, whatever symbol you are inserting in the stack, the set of all those symbols is represented by a T. So T is nothing. Suppose in a stack you are inserting only the one symbol, that is a Z0 is already present, so T would be the a Z0. So that it depend on the particular question what would be the value of T. Rest meaning are already you know about that. What is a Q? That is a set of state, set of input alphabets. T is a stack symbol. Delta is transition of PDA, initial state of PDA. Z0 is initial symbol in the PDA in the stack, and F is a set of final state. Now next topic is ID of PDA. ID का मीनिंग है इंस्टेंटेनियस description of PDA. Suppose it is represented by a Q comma X comma alpha. So at a particular moment, suppose this is a situation, A Z0, A B. So here this is a situation. If this is the situation at a particular moment, then ID of this PDA would be defined as a Q. What is the current state? Current state is Q1. Next, what is the value of X? X would be the remaining symbol which we have to process. It means इस स्टेप पर हमारे पास AABB सिंबल है. AA सिंबल हम ऑलरेडी प्रोसेस कर चुके हैं. यहाँ से यहाँ तक के सिंबल हमें आगे प्रोसेस करना भी बाकी है. तो यहाँ पर X की वैल्यू होगी B एंड अल्फा इज taking the symbol from top to bottom, that is a Z0, that is known as a ID of PDA. So depend on the particular situation you will get the different ID. Next, initial ID of PDA. Initially what would be happen, you are having a इनिशियल स्टेट दैट इज़ अ Q नॉट, सो दैट वुड बी द करंट स्टेट. यहाँ पर हमारे पास इनिशियली डब्ल्यू स्ट्रिंग प्रेजेंट होगी जिसमें से कोई भी एलिमेंट हमने प्रोसेस नहीं किया है. इनिशियल स्टैक पे हमारे पास Z0 सिंबल होगा. नेक्स्ट टॉपिक इज ID मोमेंट. सो सपोज यू हैव गिवन एनी ID, और इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं.
यहाँ पर प्रीवियस एग्जाम्पल को मैंने एज इट इज़ कंसीडर किया। यहाँ पर इस पर्टिकुलर मोमेंट पर इसका जो आईडी होगा दैट वुड बी द Q1 कॉमा B कॉमा A Z0। नाउ आईडी मोमेंट इज, जब भी इस पीडीए पर आप कोई भी ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे, ट्रांजिशन लाइक दैट, सपोज यू आर अप्लाइंग Q1 कॉमा B कॉमा A, दैट इज Q2 कॉमा empty। सो यदि आप यहाँ पर देखें, सो इसका मीनिंग हो गया कि आपने पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। इस ट्रांजिशन को इस आईडी पर अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या चेंजेस होंगे। ये हमारे पास इनपुट है, ये सिचुएशन हमने एज इट इज़ बना दिया। नाउ यहाँ पर Q1 स्टेट से क्या चेंज हो गया, हमारे पास Q2 स्टेट चेंज हो गया। ये हमारे पास इनपुट टिप पर सिंबल थे। जैसे ही ये ट्रांजिशन अप्लाई होगा, हेड विल मूव इन द नेक्स्ट लोकेशन, इट मीन्स हेड विल पॉइंट हेयर। नाउ यहाँ पर इट इज़ परफॉर्मिंग द पॉप ऑपरेशन, इट मीन्स जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, रिमेनिंग एलिमेंट हमारे पास ये प्रेजेंट होंगे। यदि इसका हम आईडी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, आईडी वुड बी द Q2 कॉमा B कॉमा A Z0। दिस इज नोन एज अ आईडी मोमेंट। इफ आई एम राइटिंग हेयर दिस वन, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द किसी एक आईडी पर, सपोज इनिशियल हमारे पास W स्ट्रिंग है, ये हमारे पास इनिशियल आईडी है। यहाँ पर मल्टीपल ट्रांजिशन, यहाँ पर था सिंगल ट्रांजिशन, यहाँ पर है मल्टीपल ट्रांजिशन। मल्टीपल ट्रांजिशन अप्लाई करने पर यू मे गेट द एनी अदर आईडी, दिस इज नोन एज अ मल्टी ट्रांजिशन। नेक्स्ट इज string accepted by, string accepted by PDA। PDA can accept the string in two manner, by final state। In this case what we will see that हमारे पास ये इनिशियल आईडी है, through multiple transition if we are reaching at a final state, it means QF must be belong to F। ऑल सिंबल मस्ट बी प्रोसेस, यहाँ पर W थे, इनपुट टिप पर सारे सिंबल प्रोसेस हो गए। एंड हेयर एल्फा, एल्फा कुड बी एनीथिंग दैट इज अ T स्टार। इट मीन्स कोई स्ट्रिंग W PDA से तभी एक्सेप्टेड होगी जब थ्रू मल्टीपल ट्रांजिशन वी आर रीचिंग एट अ फाइनल स्टेट। द अदर बाय null store। in this case what would be happen, यहाँ पर अगेन हमारे पास सेम सिचुएशन है, but through multiple transition Q may be any Q। it means it is not necessary you are reaching at a final state, but it is compulsory that all symbol must be processed and here stack must be empty। so difference between these two is यहाँ पर state फाइनल स्टेट होना ज़रूरी है, यहाँ पर स्टैक का एम्प्टी होना ज़रूरी है। सो दीज आर द कंपल्सरी पार्ट, दिस एंड दिस वन। इन दिस केस दिस इज़ अ कंपल्सरी, इन दिस केस इट इज़ अ कंपल्सरी। इन बोथ केसेस यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग होना चाहिए, इसका मीनिंग सारे सिंबल प्रोसेस हो गए। एंड यहाँ पर फाइनल स्टेट की केस में स्टैक के अंदर कोई भी सिंबल हो सकते हैं, यहाँ पर कोई भी स्टेट प्रेजेंट हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिजाइनिंग ऑफ push down automata। so all those topic I have revised quickly, ये मैंने पहले भी डिस्कस कर लिए थे। now the important topic जिसमें हमेशा क्वेश्चन आता है, डिज़ाइनिंग ऑफ पीडीए। आपके पास क्वेश्चन आता है कि आपके पास एक लैंग्वेज गिवन है a की पावर n b की पावर n सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1।
Design a PDA for this. Design a PDA for this language. For this language. Now, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डिजाइनिंग का मीनिंग है, हमारे पास पीडीए की डेफिनेशन है एम इज इक्वल टू क्यू सिग्मा टू डेल्टा क्यू नॉट जेड नॉट एंड एफ। डिजाइनिंग का मीनिंग है कि यदि आपने डेल्टा की वैल्यू डिफाइन कर दिया, सो आपने उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए उस ऑटोमेटा को डिज़ाइन कर दिया। सो मेन टास्क इज फाइंडिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा। नाउ इस डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करने का मीनिंग है हमारे पास गिवन लैंग्वेज के लिए डेल्टा डिफाइन करना। यहाँ पर डेल्टा को डिफाइन करने का मीनिंग है कि हमें ट्रांजिशंस बताने हैं, और ट्रांजिशन बनाने का कोई भी फिक्स मेथड नहीं है। ये आपको सोचना है एक गिवन पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए अलग अलग ट्रांजिशन डिफाइन होंगे। मैंने अपना एक थ्योरी बनाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप मोस्टली क्वेश्चन के लिए इस तरह से ट्रांजिशन डिफाइन कर सकते हैं। एंड यदि आपने ट्रांजिशन डिफाइन कर दिए, इसका मीनिंग है उस लैंग्वेज के लिए आपने पीडीए डिज़ाइन कर दिया। तो यहाँ पर देखिए, इम्पोर्टेंट बात ये रहता है कि जब भी हम पीडीए डिज़ाइन करें तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम स्टेट कब चेंज करनी है, एंड सेकंड इज स्टैक में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ऑपरेशन स्टैक के अंदर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल जो ये वाला लिया, इसको थोड़ा डिटेल में लेता हूँ कि यहाँ पर जो भी लैंग्वेज गिवन होती है उस लैंग्वेज में आप एक्सपेंड कीजिए। एक्सपेंड करने पर आपको इस तरह से स्ट्रिंग मिल रही है। मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं कि आपके पास गिवन जो लैंग्वेज है वो कौन सी टाइप की है। ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पर आई थिंक मोस्टली ऑफ यू एबल टू डिसाइड दैट इट इज़ अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। वाई? बिकॉज यहाँ पर दो टर्मिनल प्रेजेंट है और दोनों के बीच में जो रिलेशन है दैट इज़ अ लीनियर रिलेशन। दैट्स वाई दिस लैंग्वेज इज़ द कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। डिजाइनिंग करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है या किसी भी प्रॉब्लम में हमें देखना है कि आपके पास जितने टर्मिनल प्रेजेंट हैं उनके बीच में कौन कौन से ऐसे टर्मिनल हैं जिनके बीच में रिलेशन प्रेजेंट है। यहाँ पर इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में केवल दो ही टर्मिनल है, ए और बी, और दोनों ही रिलेटेड हैं। इट मीन्स ये पॉसिबल एग्जांपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हमने देख लिया कि दो टर्मिनल है ए एंड बी एंड दोनों ही रिलेटेड है। डिज़ाइनिंग को और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जिससे आप याद रख सकते हैं कि गिवन लैंग्वेज में सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कौन कौन से एलिमेंट रिलेटेड हैं। जो एलिमेंट रिलेटेड है उसमें से जो पहले आ रहा है उसको दूल्हा मान लीजिए, जो बाद में आ रहा है उस एलिमेंट को दुल्हन मान लीजिए, और जो बाकी के एलिमेंट जो रिलेटेड नहीं है उनको आप बाराती मान लीजिए। इट मीन्स इन दिस एग्जाम्पल वी आर हैविंग ओनली द दुल्हा एंड दुल्हन, देयर इज नो बाराती। सो हम किसे दूल्हा कहेंगे, दोनों रिलेटेड है, पहले कौन आकर हो रहा है, ए आकर हो रहा है, इसलिए ये दूल्हा हो गया। यहाँ पर बी बाद में आकर हो रहा है, इट मीन्स ये दुल्हन हो गई। मान लीजिए हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ए की पावर एन, बी की पावर एम, सी की पावर एम, सच दैट एम एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो इस लैंग्वेज में हमारे पास तीन एलिमेंट है। इन तीन एलिमेंट में देखिए कौन कौन से एलिमेंट रिलेटेड है। यहाँ पर रिलेटेड एलिमेंट है बी एंड सी। इट मीन्स ये लीनियर रिलेशन है। ये लैंग्वेज हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है।
सो मैंने आपको बताया कि आइडेंटिफाई कीजिए कौन कौन से एलिमेंट रिलेटेड है। आपने आइडेंटिफाई किया बी और सी रिलेटेड है। इसमें बी पहले आ रहा है, इट मीन्स ये दूल्हा हो गया। सी बाद में आ रहा है, ये दुल्हन हो गई। और बाकी के एलिमेंट कहीं भी प्रेजेंट हो वो हुए आपके बाराती। हम क्या कंसेप्ट अप्लाई करेंगे कि जब भी हमारे पास दूल्हा एलिमेंट आ रहा है, जब भी हमारे पास दूल्हा एलिमेंट आ रहा है, हमें पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जब भी हमारे पास दुल्हन वाला एलिमेंट आ रहा है तो हमें पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और जब भी हमारे पास बाराती वाला एलिमेंट आ रहा है तो हमें नो चेंज करना है। सो ट्रांजिशन बनाने में ये तो आपको क्लियर होगा कि स्टैक के अंदर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। स्टैक के अंदर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है इसको डिसाइड करने के लिए पहले लैंग्वेज के अंदर आप देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट रिलेटेड हैं। जो एलिमेंट रिलेटेड है उसमें से जो पहले आ रहा है उसको दूल्हा मानेंगे, जो बाद में आ रहा है उसको दुल्हन, बाकी के एलिमेंटों को बाराती। दूल्हा एलिमेंट के लिए आप पुश ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। दुल्हन एलिमेंट के लिए आप पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और बाराती के लिए आप नो चेंजेस करेंगे। ये अभी टाइमिंग याद रखिए, मैं इसको क्लेरिफाई करता हूँ। दूसरा, हमें स्टेट कब चेंज करनी है। स्टेट चेंज करने का मीनिंग है, स्टेट का मीनिंग है अ पर्टिकुलर सिचुएशन। तो ये मान के चलिए कि जब भी आप एक एलिमेंट को देख रहे हैं, जब भी आप किसी एक एलिमेंट को देख रहे हैं तब तक उस की स्टेट चेंज नहीं करनी है। जैसे ही आप एक एलिमेंट के बाद में किसी दूसरे एलिमेंट को देखना स्टार्ट करते हैं तो उस मोमेंट पर आपको स्टेट चेंज करनी है। मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। डिज़ाइन करने के लिए सपोज मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया, कोई भी डब्ल्यू स्ट्रिंग ले लिया, दैट इज़ AABB। ये मैंने एक डब्ल्यू स्ट्रिंग ले लिया विच इज़ बिलोंगिंग टू द गिवन लैंग्वेज। यहाँ पर क्या करना है, इस स्ट्रिंग को मैंने यहाँ पर टेप पर पुटअप कर दिया, दैट इज A, B। Initial state of PDA would be the Q0. Initial symbol in the stack that would be the Z0। तो ये हमारे पास इनिशियल सिचुएशन होगी। सो मेरे को सबसे पहला ट्रांजिशन मैं बनाऊंगा। ट्रांजिशन वुड बी द डेल्टा Q0, A, Z0, क्योंकि यहाँ पर ये करंट स्टेट है, यहाँ पर ये करंट सिंबल है, दैट इज़ अ टॉप मोस्ट सिंबल। नाउ अब आपको यहाँ पर दो चीज़ डिसाइड करनी है। कौन कौन सी चीज़, स्टेट चेंज करें या नहीं करें, दूसरा कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इस केस में फर्स्ट टाइम पर आपके पास पहले कोई एलिमेंट नहीं था, पहला एलिमेंट अकर हुआ है। जैसे ही पहला एलिमेंट अकर हुआ आपने उसकी स्टेट को चेंज कर दिया। नाउ यहाँ पर जो गिवन लैंग्वेज है उसमें केवल दो एलिमेंट है, ए एंड बी, दोनों रिलेटेड है। पहले ए आ रहा है जिसको हमने दूल्हे से रिप्रेजेंट किया। इट मीन्स कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, पुश ऑपरेशन। इस पुश ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ पर पुश ऑपरेशन का मीनिंग है कि यहाँ पर जो आपके पास दोनों सिंबल हैं, दोनों सिंबलों को कंबाइन करके लिख दीजिए, दैट इज़ अ पुश ऑपरेशन। सो इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल यू विल राइट इन दिस मैनर। जैसे ही आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे पीडी अपनी स्टेट को चेंज कर लेगा, अपनी आईडी को चेंज कर लेगा। इट मीन्स व्हाट वुड बी हैपन, यहाँ पर पीडीए विल पॉइंट टू द दिस लोकेशन एंड यहाँ पर एक सिंबल ऐड हो गया और ऐड होने के बाद में हमारे पास हेड विल पॉइंट टू द दिस लोकेशन। नाउ हमारे पास एक नया ट्रांजिशन अब डिफाइन करना होगा हमें, दैट वुड बी द इस और स्टेट हो गया हमारे पास Q1। सो यहाँ पर स्टेट इज Q1, करंट सिंबल इज A, टॉप मोस्ट सिंबल इज A। नाउ वी हैव टू डिसाइड टू थिंग, स्टेट चेंज करना है नहीं करना, दूसरा स्टैक में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो देखिए आपने पहले भी ये सिंबल देख रहे थे,
अभी भी आपके पास ए सिंबल करंट सिंबल है, इट में सिंबल में कोई चेंज नहीं है, आप स्टेट चेंज नहीं करेंगे। सो आपने लिखा यहाँ पर Q1। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपके पास ए सिंबल है, ए सिंबल के लिए आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे? पुश ऑपरेशन। वाई? बिकॉज ऑलरेडी वी हैव डिसाइडेड कि ये दूल्हे को रिप्रेजेंट करता है, और पुश ऑपरेशन का मीनिंग दोनों सिंबल को कंबाइन करके लिख दीजिए। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल टेक द हेड इन दिस लोकेशन। स्टेट में कोई चेंज नहीं किया, यहाँ पर एक एलिमेंट ऐड हो गया, ये वाला सिचुएशन हो गया। नाउ इसका ट्रांजिशन हम देखें, ट्रांजिशन वुड बी द Q1, A, Q1, A ऑलरेडी आप डिफाइन कर चुके हैं, इट मीन्स आपको कोई नया ट्रांजिशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, हेड विल मूव टू द, क्योंकि जैसे ही आपने इसको परफॉर्म करेंगे, इसको परफॉर्म करने पर क्या होगा, हमारे पास एक एलिमेंट और इसके अंदर ऐड हो जाएगा। सो आप क्या बनेगा डायग्राम अब आपका, यहाँ पर ए बी तीनों एलिमेंट यहाँ पर ऐड हो गए, स्टेट इज़ Q1, और हमारे पास स्टैक के अंदर 3 सिंबल हमने पुश कर दिए हैं, ये हमारे पास सिचुएशन अभी बन गई। सो नेक्स्ट ट्रांजिशन यू विल डिफाइन दैट इज डेल्टा Q1, B, A. Now we have to decide that इस सिचुएशन के अंदर हम स्टेट चेंज करेंगे या नहीं करेंगे। अब देखिए आप, पहले एलिमेंट ए था, मैंने आपको बताया जब भी एक एलिमेंट देखने के बाद में जैसे ही आपको दूसरा एलिमेंट नज़र आता है, तो यहाँ पर दूसरा एलिमेंट कौन सा नज़र आने लग गया आपको, बी। इनपुट टिप पर पहले आप ए को प्रोसेस कर रहे थे, जैसे ही ए को प्रोसेस करने के बाद में आपने बी को प्रोसेस करना स्टार्ट करेंगे, आप स्टेट चेंज कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर करंट सिंबल इज बी सिंबल, इस बी सिंबल के लिए आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, बी कौन था हमारे पास, बी दुल्हन थी, इसके लिए कौन सा ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एम्प्टी। सो यू विल राइट हेयर कॉमा एम्प्टी। जैसे ही आपने ट्रांजिशन लिखा, ट्रांजिशन लिखने के बाद में आपका डायग्राम क्या बन जाएगा, ए बी, हेड विल पॉइंट हेयर, स्टेट इज Q2, एंड यहाँ से पॉप का मतलब टॉप मोस्ट एलिमेंट को आपने यहाँ से रिमूव कर दिया। नाउ नेक्स्ट ट्रांजिशन यू विल डिफाइन, नेक्स्ट ट्रांजिशन क्या बनेगा, डेल्टा करंट स्टेट इज Q2, करंट सिंबल इज B, टॉप मोस्ट सिंबल इज A। आपने कोई ट्रांजिशन डिफाइन किया, कोई भी ट्रांजिशन आपने डिफाइन नहीं किया, इसके लिए ट्रांजिशन डिफाइन करना है। अब देखिए इसके जस्ट पहले जब Q2 स्टेट आई थी तो आपका इन पास सिंबल क्या था, B, अभी भी क्या सिंबल आपके पास B, यू विल नॉट चेंज द स्टेट। ऑपरेशन यू विल परफॉर्म द पॉप ऑपरेशन। नाउ आफ्टर डूइंग दिस, यहाँ पर हेड विल पॉइंट हेयर, ये सिंबल यहाँ से चला जाएगा। नाउ दिस will point to this symbol. So again transition would be the Q2, B, A. Q2, B, A already defined. Then what you will do after this particular transition, आपके पास ये डायग्राम बन जाएगा। आपने इनपुट टिप पर सारे सिंबल प्रोसेस कर दिए हैं, हेड विल पॉइंट हेयर, स्टेट वुड Q2, एंड यहाँ पर हमारे पास Z0 सिंबल रिमेनिंग रहेगा। सो फॉर दैट यू विल राइट अ ट्रांजिशन Q2, empty, Z0, so you will write that is a Q of state. So here इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपके पास ये केवल 5 ट्रांजिशन डिफाइन हुए, एंड यहाँ पर इनको यदि हम PDA की फॉर्म में लिखें, Q सिग्मा डेल्टा Q नॉट एंड F, सो व्हाट वुड बी द Q, इस पर्टिकुलर के अंदर हमारे पास कौन कौन से हैं, Q नॉट, Q1, QF।
sigma, symbol input symbol is AB, then q sigma to delta q naught z naught and टी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सिंबल पुश किया हमने, केवल एक तो ए सिंबल पुश किया था, एक जेड जीरो पुश किया था. डेल्टा इज डिफाइंड ऑलरेडी हियर. इनिशियल स्टेट इज क्यू नॉट, जेड नॉट इनिशियल सिंबल इज जेड नॉट एंड फाइनल स्टेट के अंदर हमारे पास केवल एक सिंबल है दैट इज अ क्यू है. सो इन दिस मैनर आपने इस गिवन प्रॉब्लम के लिए पीडीए डिज़ाइन किया. सो यहाँ पर यदि मैं इसको समराइज़ करूँ, डिज़ाइनिंग ऑफ पीडीए बहुत सिंपल है. मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ इसको. आपको क्या करना है, सबसे पहले गिवन लैंग्वेज के अंदर आइडेंटिफाई कीजिए कौन कौन से एलिमेंट रिलेटेड हैं. उसके बाद में जो एलिमेंट रिलेटेड हैं आइडेंटिफाई कीजिए उसमें से पहला कौन सा अकर हो रहा है. जो एलिमेंट पहले अकर हो रहा है उसको दूल्हा मान लीजिए, जो बाद में अकर हो रहा है उसको दुल्हन मान लीजिए. अगर और कोई बाकी का टर्मिनल यहाँ पर प्रेजेंट है तो उसको बाराती मान लीजिए. फिर आपने कह दिया कि जो एलिमेंट पहले अकर हो रहा है उसको दूल्हा, दूल्हे के लिए हमेशा पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है. जो एलिमेंट दुल्हन है उसके लिए पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है और रिमेनिंग एलिमेंट के लिए आपको नो चेंज करना है. ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पुश के केस में दोनों सिंबल को कंबाइन करके लिख देते हैं, पॉप के केस में यहाँ पर एम्प्टी लिख देते हैं और नो चेंजेस के केस में यहाँ पर जो सिंबल है पॉप वही सिंबल यहाँ पर लिख देते हैं. सेकंड हमें डिसाइड करना है कि स्टेट कब चेंज करनी है. स्टेट चेंज करने का सिंपल सा मीनिंग है, इनपुट टेप पर आपके पास सिंबल प्रेजेंट है, सबसे पहले सिंबल पर स्टेट चेंज कर दीजिए. जब तक पहला सिंबल आपके पास आता रहता है आपको स्टेट चेंज नहीं करनी. जैसे ही फर्स्ट सिंबल के बाद में जो दूसरा सिंबल आता है आपको स्टेट चेंज कर देनी है. इसके बाद में जब तक आपके पास इस तरह से होगा उस पर्टिकुलर मोमेंट पर आप स्टेट चेंज करेंगे. एट लास्ट व्हाट यू हैव टू डू, जब आपके पास सारे सिंबल प्रोसेस रहेंगे तो लास्ट में इस तरह ट्रांजिशन बनेगा जिसमें इनपुट पर एम्प्टी होगा और यहाँ पर जेड होगा. उस केस में फाइनल स्टेट डिफाइन कर दीजिए और यहाँ पर जितने भी जो हमने ट्रांजिशन बनाए उनके अकॉर्डिंग जो पीडी की डेफिनेशन उनके 7 टपल की वैल्यू डिफाइन कर दीजिए. इस तरह आपके पास ये पीडीए डिज़ाइन हो जाएगा. मैं एक एग्जांपल और लेके इसको एक्सप्लेन करता हूँ. L इज इक्वल टू ए की पावर m, b की पावर n, c की पावर m such that m n is greater than equal to 1. सो क्विकली प्रोसेस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इसमें हम डिसाइड करते हैं क्या करना है. हमने देखा कि यहाँ पर कोई भी एक स्ट्रिंग ले लिया, यहाँ पर m और n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, बट रिलेशन इज यहाँ पर नंबर ऑफ ए एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी. लीनियर रिलेशन, इट मीन्स इट इज़ अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. यहाँ से हमने एक डब्ल्यू स्ट्रिंग लिया, सपोज मैं डब्ल्यू स्ट्रिंग ले लिया ट्रिपल ए डबल बी ट्रिपल सी. जब स्ट्रिंग ले रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ़ सी और बी पर हमारा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. बी की वैल्यू कोई भी एन से ज़्यादा हो सकती है. ये हमारे पास इनपुट टेप पर हमने इसको ले लिया. अब यहाँ पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमने देखा ए और सी रिलेटेड हैं. ए पहले अकर हो रहा है इसलिए दूल्हा हो गया. इट मीन्स ए के सारे एलिमेंट के लिए पुश ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. सी एलिमेंट बाद में अकर हो रहा है, यहाँ पर हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एंड रिमेनिंग जो सिंबल है इन पर हम नो चेंज करेंगे. तो पहली चीज़ तो आपने डिसाइड कर लिया. सेकंड चीज़ यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि स्टेट कब कब चेंज करनी है. तो एक तो आपको इस फर्स्ट पोजीशन पे स्टेट चेंज करना है. एक जैसे ही आपके पास ए से बी एलिमेंट आता है तो आपको स्टेट चेंज करनी है. तीसरा बी के बाद में जब नेक्स्ट आपको सी एलिमेंट आता है तो स्टेट चेंज करनी है. इसके अकॉर्डिंग आप ट्रांजिशन डिफाइन कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पर अब मैं एक एक ट्रांजिशन के लिए यहाँ पर डिफाइन नहीं करूँगा, आप अपने दिमाग में उनको एक्सिक्यूट करते जाएं. मैं फर्स्ट एक बार डायग्राम बना रहा हूँ और उसको आपको मैं बोल के समझा दूँगा. आपको अपने पेपर पेंसिल की हेल्प से उसको कंटिन्यू करना है. सो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ट्रांजिशन वुड बी डेल्टा क्यू नॉट कॉमा ए कॉमा जेड. नाउ
देखिए इसमें स्टेट चेंज करना है, या मैंने बताया 3 पॉइंट पे स्टेट चेंज करना है। स्टेट चेंज करेंगे Q1। ऑपरेशन कौन सा होगा, यहाँ पर पुश ऑपरेशन, दोनों कंबाइन कर दिया। नेक्स्ट, ये होने के बाद में हेड विल पॉइंट हेयर, स्टेट हो गया हमारे पास Q1। यहाँ पर ए सिंबल हमारे पास पुश हो गया, तो ये स्थिति हो गई, ये आउट हो गया। नेक्स्ट ट्रांजिशन वुड बी द डेल्टा Q1 A। नाउ हमारे पास स्टेट चेंज करना है, अब नहीं करना क्योंकि पहले भी ये एलिमेंट था, अभी भी एलिमेंट है। ए के लिए कौन सा हमें ऑपरेशन, पुश ऑपरेशन, दोनों को कंबाइन कर दिया। ठीक है, इसको करने के बाद में अब देखिए इस ऑपरेशन के बाद में स्टेट हमारे पास Q1 होगी, करंट सिंबल हमारे पास हो जाएगा ए। 2 सिंबल हमने प्रोसेस कर दिया, तीसरा भी को प्रोसेस करेगा और यहाँ पर हमारे पास होगा AZ0। ये सिचुएशन होगी। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ट्रांजिशन यू विल डिफाइन Q1 A। इसके लिए हम ऑलरेडी ट्रांजिशन डिफाइन कर चुके हैं। तो यहाँ पर जैसे इस ट्रांजिशन को एग्जीक्यूट करेंगे हमारे पास, मैं डायग्राम बना देता हूँ क्या सिचुएशन हो जाएगी। सिचुएशन वुड बी लाइक दिस, तीनों ए सिंबल आपने प्रोसेस कर दिए हैं, B C एंड हियर C। स्टेट इज Q1 और यहाँ पर स्टैक के अंदर तीनों ए सिंबल आपने पुश कर दिए, हेड विल पॉइंट हियर। सो नेक्स्ट ट्रांजिशन यू विल डिफाइन दैट वुड बी द Q1 B A। नाउ जैसे ही हमारे पास B सिंबल अकर हुआ हमें स्टेट चेंज करना है। यस, B सिंबल के लिए कौन सा ऑपरेशन है, नो चेंज। तो आपने नो चेंजेस किया, इट मीन्स ना पुश किया ना पॉप किया, एज इट इज। इस एलिमेंट के बाद में हमारे पास स्टैक में कोई चेंजेस नहीं होगा, बट हेड विल पॉइंट टू द नेक्स्ट लोकेशन। स्टेट हमारे पास हो गई Q2। अब आप ट्रांजिशन लिखेंगे डेल्टा Q2 B, दैट वुड बी द A। नाउ अब आपने B सिंबल के लिए पहले स्टेट चेंज कर दी थी, अभी भी आपके पास B सिंबल है, अब दोबारा स्टेट चेंज नहीं करेंगे और स्टेट में कोई चेंजेस नहीं। इसके बाद में आपके पास सिचुएशन ये हो जाएगी कि आपने सारे A एलिमेंट प्रोसेस कर दिए हैं, B एलिमेंट आपने प्रोसेस कर दिए हैं और C एलिमेंट को आपको प्रोसेस करना बाकी है। यहाँ पर स्टेट इज Q2 और हमारे पास स्टैक में 3 A हैं और एक Z0 है। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट ट्रांजिशन डिफाइन करेंगे डेल्टा Q2 C A। नाउ B के बाद में आपके पास C एलिमेंट आया, आप स्टेट चेंज करेंगे। C एलिमेंट के लिए कौन सा ऑपरेशन करना है, पॉप ऑपरेशन, इसका मीनिंग एम्प्टी है। नाउ इस ऑपरेशन के बाद में हेड विल पॉइंट हेयर, स्टेट हो गई हमारे पास Q3, एक एलिमेंट यहाँ से चला गया। तो अब आपके पास सिचुएशन क्या हो गई, Q3 C A। Q2 पर आपने स्टेट चेंज कर दिया C सिंबल आने पर, अब आपके पास अगेन C सिंबल आ रहा है, स्टेट चेंज नहीं करेंगे। ऑपरेशन वुड बी द पॉप ऑपरेशन। इसके हेल्प से ये एलिमेंट आपके पास पॉप हो गया। नेक्स्ट आपके पास ट्रांजिशन होगा Q3 C A। Q3 C A ऑलरेडी डिफाइन कर दिया, ये C सिंबल आपके पास पॉप हो गया। एट लास्ट Q3 एम्प्टी Z0, यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे QF Z0 एंड इन सबको आप समराइज़ करके लिख देंगे और समराइज़ करके लिखने पर जो बनेगा दैट वुड बी योर फाइनल PDF।